ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پہ دھول چٹائی ہے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. پہلے 6 دفعہ یہ تماشا لگ چکا. ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. کالعدم تحریک لبیک ہے، اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. ریاست کی ریٹ یقینی بنانے کا ٹھوس عزم. وفاقی کابینہ کا قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. کالعدم تحریک لبیک سے مسلح گروہ کے طور پر نمٹا جائے گا. کسی کو طاقت کے زور پر ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس. کالعدم ٹی ایل پی کا سوشل میڈیا ونگ فیک نیوز پھیلا رہا ہے. سیاسی مقاصد کے لیے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنے دیں گے. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ. ہو چکے ہیں. سادوکی میں انہوں نے کلاشنکوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے، 70 زخمی ہیں. پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں. پنجاب میں 2 ماہ کے لیے رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ. امن و امان کے قیام میں صوبائی حکومت سے تعاون کرے گی. کالعدم ٹی ایل پی کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید، متعدد زخمی ہوئے. فرانس کے سفارت خانے کو بند نہیں کر سکتے. احتجاج کرنے والوں سے ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. عوام کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے 74 سال. مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال. پاکستان کا نہتے کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی. ملک بھر میں ریلیاں اور خصوصی تقریبات. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. حق خود ارادیت کی جدوجہد کے حصول تک حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. یوم سیاہ کے موقع پر اسلام آباد میں یکجہتی کشمیر ریلی. صدر مملکت، ارکان پارلیمنٹ اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت. پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے. عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرے. صدر ڈاکٹر عارف علوی. قابض بھارتی افواج کی 7 دہائیوں سے ظلم و جبر کے باوجود کشمیریوں کا عزم مضبوط ہے. اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے. وزیر اعظم عمران خان. سعودی عرب کا پاکستان کے لیے 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز کے پیکج کا اعلان. پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی معاونت. سعودی ترقیاتی فنڈ اسٹیٹ بینک میں 3 ارب ڈالر ڈپازٹ کرے گا. سعودی عرب نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جلد طے پا جائیں گے. ایف اے ٹی ایف کے 27 میں سے 26 نکات پر پیش رفت مکمل ہو گئی. منی لانڈرنگ کے حوالے سے نکات پر فروری تک عمل درآمد ہو جائے گا. حکومت نے 1 سال میں تیل کی قیمتوں پر 450 ارب روپے کی سبسڈی دی. مشیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر توانائی حماد اظہر کی نیوز بریفنگ. افغانستان میں امن و استحکام کے لیے علاقائی کوششیں تیز. تہران میں ہمسایہ ممالک کے اہم اجلاس کا وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل اور منجمد اثاثے بحال کرنے کی ضرورت پر زور. عالمی برادری نے افغانستان کی امداد بحال نہ کی تو اگلے سال 90% سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے جا سکتی ہے. پاکستان افغانستان کو ہنگامی بنیادوں پر خوراک اور ادویات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب. افغان عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدام کو تیار. طالبان حکومت کو بلینک چیک نہیں دے سکتے. برطانوی وزیر اعظم. کوشش ہے کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردی کا مرکز نہ بنے. اقوام متحدہ اور عالمی امدادی اداروں کے ساتھ مل کر انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بورس جانسن کا دارالعوام سے خطاب.
दहशत गर्दों की पाकिस्तान अफगान सरहद अबूर करने की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। शहदा में लांस नायक असद अली और सिपाही आसिफ शामिल। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब जुमे को होगा। सूबाई असम्बली का इजलास 29 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तलब। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कद्दूस बिजुंजो की हिमायत का ऐलान कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात, केसेस और अमवात में नुमायां कमी। 24 घंटे के दौरान 516 केसेस रिपोर्ट, 13 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड। NCOC की मरी एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई। सैकड़ों मुसाफिरों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की दूसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 125 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल। जेनसन रॉय के 61 रन। टाइमल मिल्स के 3 शिकार। अबुधाबी में नमीबिया और स्कॉटलैंड का मैच जारी। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और कौमी क्रिकेटर शुएब अख्तर और डॉक्टर नोमान नियाज के दरमियान PTV स्पोर्ट्स पर पेश आने वाला मामला। पाकिस्तान टेलीविजन इंतजामिया ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं सलमा कौसर। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जानिब जाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने रियासती रिट यकीनी बनाने के अज़म का इआदा करते हुए 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कलअदम TLP को मुसल्लह ग्रोह के तौर पर निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में वाज़ेह किया गया कि रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। इजलास में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला हुआ। तफसील से आगाह करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना ने कालादम तहरीक लबैक की जानिब से एहतजाज करने और रास्तों को बंद करने के इकदामात पर तशवीश का इजहार करते हुए फैसला किया है कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले अस्करियत पसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। काबीना ने करार दिया कि मौजूदा हालात में रियासत की इज्जत और शहरियों की जिंदगियों का सवाल है। किसी ग्रोह की सोच को बंदूक के जोर पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को कोई कमजोर समझने की गलती न करें। TLP के लोग रास्ते बंद करके हर छठे महीने सड़कों पर आ जाते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। उनके नाम को इस्तेमाल करके सियासत नहीं की जा सकती। काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग में इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजीर दाखिला ने TLP के साथ होने वाले मुज़ाकरात से काबीना को आगाह किया। इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। पहले 6 दफ़ा ये तमाशा लग चुका। हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। पिछली दफ़ा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए और 700 से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में और 49 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा।
इतलात और नशरियात के वजीर ने बताया कि वफाकी काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने फैसला किया कि वजारत पार्लिमानी अमूर आइंदा होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखेगी। काबीना ने सिंध में अशियाए जरूरिया की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। रीजनल प्राइसेस में सवाए जो घी है, जो कि हिंदुस्तान में को 20 रुपये हमसे सस्ता है, बाकी तमाम चीज़ें इस रीजन में पाकिस्तान अभी भी इस रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने काबीना को ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने और इजारादारी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम के ऊपर ब्रीफिंग दी है, और हमारा ख्वाहिश ये है कि ये जो छोटा फार्मर है इसको हम इक्विप करें कि ये जदीद मशीनरी पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सके। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि काबीना ने रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा के साथ होने वाले मुबैना नारवा सलूक पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आईन हर शहरी को उनके वकार के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाक़िए का नोटिस लेंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमनो अमान के क़याम में मदद के लिए पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कलअदम TLP ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाना चाहती हैं। एहतजाज करने वाले होश के नाखुन लें। ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस नहाती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। हालात की संजीदगी को देखते हुए मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। एंटी टेररिस्ट एक्ट का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ। हम नामूसे रसालत के भी सिपाही हैं और ख़त्म नबूवत के भी सिपाही हैं, और इनका एजेंडा कुछ और है। अभी आपको बताएं कि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस राव सरदार अली खान ने बताया कि कलअदम TLP की तरफ से एहतजाज के नाम पर अमनो अमान सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। रियासती रिट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फरोग दिया गया है। कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाईं। क्या रियासत इस बात की इजाज़त दे सकती है कि कोई एक गिरोह पूरे मुल्क को यरगमाल बना दे? पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हर शहरी को पुरअमन माहौल की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है, और अमनो अमान की फ़ज़ा बरकरार रखना हमारा मिशन है। हम कानून की अमलदारी को इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 4 अरब 20 करोड़ डॉलर पैकेज का ऐलान किया है। पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी की मद में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मुआवनत फराहम की जाएगी, जबकि सऊदी तरक्याती फंड स्टेट बैंक में 3 अरब डॉलर डिपॉजिट करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है। सऊदी अरब की जानिब से इमदादी पैकेज मईशत के लिए अहम है। IMF के साथ मामलात जल्द तय पा जाएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन और वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि FATF के 27 में से 26 नुकात पर पेशरफ मुकम्मल हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से निकात पर भी फरवरी तक अमल दरामद हो जाएगा। तफसील जानते हैं राना इफ्तिकार अहमद से। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि सऊदी अरब से कुल 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की सहूलत मिलेगी। माजी में भी बरादर इस्लामी मुल्क ने 3 अरब डॉलर फ्राहम किए थे। 1.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए, जिसका मतलब 100 मिलियन डॉलर पर मंथ मिलेगा। और इस वक्त आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें हैं और जो प्रेशर है हमारे रुपये पे, उसको देखा जाए तो ये हमारा जो 4.2 बिलियन 1 साल के लिए जो मिला है
ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया में हर जगह तेल और गैस में तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने एक साल में तेल की कीमतों पर 450 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। चाहे वो अमीर मुल्क हो अमेरिका जैसा या गरीब मुल्क हो, पाकिस्तान से उसमें तेल की कीमत आज ज़्यादा ही है। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें कि जो गैस की कीमत है 2019 से आज तक नहीं बढ़ी। यूरोप में 5 से 10 गुना इन सर्दियों में गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया। इसी तरह हमने ये कोशिश की है कि यूरिया जो है जैसे उसको सस्ता रखा जाए। आज 1700-1800 रुपए की बोरी है यूरिया की, बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर 7000 रुपए की बोरी जा रही है। मुशीर खजाना ने कहा कि IMF से तोसीही कर्ज की सहूलत के मामला तकमील के करीब हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये एक भी क्या चीज है, 1 मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसके लंच में देना शुरू किए हैं, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। नाजरीन, दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के 74 साल मुकम्मल होने पर यौम स्याह मनाया। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने रियासती अवाम की मर्जी के बरक्स अपनी फौजें श्रीनगर में उतारी और रियासत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। कश्मीरी अवाम ने गासिबाना कब्जे को मुस्तरद करते हुए जद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ किया और भारतीय मजालिम के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियों से तारीख रकम की। दिन की मुनासबत से लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने तकरीबात का इनेकाद किया और भारतीय तसल्लुत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। पाकिस्तानी अवाम ने भी मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया। तमाम शहरों और कस्बों में रैलियां और तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें भारत की रियासती दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने इस अज़म का यादा किया कि कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रहेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी और उनकी आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। यौम स्याह के मौके पर इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुत्व बालादस्ती के तहत रकम की जाने वाली भारत की तारीख मजीद स्याह होगी। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। यकजहती कश्मीर रैली से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि भारत के कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर दुनिया की खामोशी एक सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म और इस्तबदाद के पहाड़ तो गिरा सकता है, लेकिन उनके जज्बा आजादी को दबा नहीं सकता। दुनिया भर के लिए पैगाम है कि बहुत जुल्म हो चुका, सबसे बड़ा जुल्म तारीख के एतबार से कश्मीर के अंदर हो रहा है। पैगाम हमारा यह है, हिंदुस्तान को वार्निंग कि बंद कर दो, खुद ही अंदर से तबाह हो जाओगे। मेरा कश्मीरी भाई मुकाबला करेगा, मेरा कश्मीरी भाई मुकाबला कर रहा है। ये डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं,
ये वहाँ की आबादी की हालात बदलना चाहते हैं, वो ये भी हम कबूल नहीं करेंगे और वहाँ बदलने नहीं दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि जुल्म के अंधेरे जब हद से तजावुज करते हैं तो रोशनी की किरणें फूटती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की जद्दोजहद आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखे हुए है। सदर मुमलिकत का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के हर मौसर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज बुलंद की और दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया है। हम हर फोरम में आपके साथ, हम हर जगह आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, आपकी जुस्तजू और जद्दोजहद में आपके साथ हैं। हिंदुस्तान अपनी रियासत की खबर खोद रहा है जुल्म कर करके। हिंदुस्तान की यह गलतफहमी हम ख़त्म करना चाहते हैं कि वो बार बार महफिल में कहते हैं कि कश्मीर अटूट अंग है, और जब कश्मीर को फतह करने के लिए पाकिस्तान तैयार था, जब नेहरू भीख मांगते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में गए और उन्होंने कहा जी हम इस्तिस्वाब राय, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर वहाँ फैसला करेंगे। ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो बात की बात है, जो पाकिस्तान बनने के उसूल थे, जो हिंदुस्तान को तोड़ने के उसूल थे, उस बुनियाद पर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा पहले भी होना चाहिए था। सदर मुमलिकत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का देरीना तनाज़ा 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला वहाँ के अवाम की राय के मुताबिक हल करवाए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। यौम सियाह के मौके पर अपने ट्वीट और पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय काबिज़ अफ़वाज के 7 दहाइयों के जबरो जुल्म के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म मजबूत है। हम कश्मीरी अवाम का बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी दुनिया के तमाम आज़ादी पसंद लोगों के लिए मशअल राह हैं। इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से आज भारत पर RSS नज़रिए की हुक्मरानी है, जिसमें मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात के साथ फौजी मुहासरा, मीडिया ब्लैकआउट और दीगर पाबंदियाँ आयद हैं। मकबूजा वादी में मावराए अदालत कत्ल, जाली मुकाबले, असमत दरी के वाक़यात और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शक्ल में इंसानी मसाइब नाकाबिले बयान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत मज़मूम इक़दामात के ज़रिए मकबूजा वादी की जोग्राफियाई हैसियत और आबादी के तनासुब को तब्दील करना चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के जायज़ और नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की हुसूल तक कश्मीरी अवाम की शाना बशाना है। आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिलाने के लिए भारत पर दबाव डाले। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यौम सियाह के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। श्रीनगर और दीगर इलाकों में दुकानें और कारोबार मराकज़ बंद रहे। हड़ताल और यौम सियाह मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीर वाइस हुर्रियत फोरम ने दी थी, जबकि दूसरी आज़ादी पसंद तंजीमों ने इसकी हिमायत की थी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अपने बयानात में कहा है कि कश्मीरी अवाम ने यौम सियाह मनाकर भारत और आलमी बरादरी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अपने मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को मुस्तरद करते हैं। कश्मीर पर भारत की फौज कशी के 74 बरस मुकम्मल होने के मौके पर KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फोर्सेज ने 27 अक्टूबर 1947 से अब तक मकबूजा कश्मीर में 4 लाख से ज़ायद अफराद को शहीद किया, जबकि 35 लाख से ज़ायद लोग आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के दीगर हिस्सों में हिजरत पर मजबूर हुए। दुनिया के कई दूसरे ममालिक में भी भारत मुखालिफ एहतजाजी रैलियाँ, सेमिनार और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। तहरीक कश्मीर बरतानिया के जरिए ज़ेर एहतमाम लंदन में कश्मीर डिजिटल कैंपेन की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए फ़हीम कयानी, डॉक्टर गुलाम नबी मेरो, दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि डिजिटल वैन आलमी सतह पर कश्मीर के बुनियादी हुकूक और हक़ खुद इरादियत के लिए बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। दूसरी जानिब इंडियन पुलिस ने T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाने पर जम्मू में सांबा, डोडा और दीगर इलाकों से 12 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी इल्ज़ाम में रियासत उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज ने मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियरिंग के 3 तलबा को मुअत्तल कर दिया है। इन तलबा पर व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। नाज़रीन, कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी गासिबाना कब्जे और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों का सफ़ीर बनकर जिस अंदाज से आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मोहम्मद नवीद अज़हर ने इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार की है।
کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے جس پر کشمیریوں کے حق میں اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں۔ پاکستان روز اول سے بھارت کے منفی عزائم سے عالمی برادری کو آگاہ کرتا رہا ہے اور انہیں یہ باور کراتا رہا ہے کہ بھارتی اقدامات سے خطے کے امن کو شدید خطرات درپیش ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق کی بات کی ہے۔ پاکستان کی پارلیمان ہو، اقوام متحدہ یا کوئی بھی فورم، وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے ہمیشہ آواز اٹھائی۔ کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا، انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ گئے، اس گورنمنٹ اپنی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے اگینسٹ گئی، جموں اور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے اگینسٹ گئی، وہ 17 یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے اگینسٹ گئے، وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن کے اگینسٹ گئے، وہ سملہ اگریمنٹ کے اگینسٹ گئے۔ انہوں نے ان فورمز پر بھارتی فاشسٹ مودی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی قوانین اور روایات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کا پردہ چاک کیا۔ جو فاؤنڈنگ فادرز تھے RSS کے گول واکر ایک اور ان کے کئی، ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ مسلمانوں کو وہ ہندوستان سے ایتھنک کلینز کریں گے۔ ایک ان کے اندر ایک مسلمانوں کے خلاف تعصب تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جس جرأت مندانہ انداز میں کشمیریوں کا مقدمہ پیش کیا اور عالمی برادری کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم عمران خان دنیا میں مقبوضہ کشمیر کے حق خود ارادیت کے علامتدار بن کر ابھرے ہیں۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، افغانستان سے متعلق خطے کے ملکوں کا اجلاس تہران میں ہوا، جس میں افغانستان میں جامع اور وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل اور منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمرہ سہیل سے۔ افغانستان کے قریبی ہمسایہ ممالک کے دوسرے وزارتی اجلاس میں پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، چین اور روس کے وزرائے خارجہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل اور منجمد اثاثے بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں ہم نے جنگ کے خاتمے سے سامنے آنے والے مواقع اور ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے راہ ہموار کرنے کا عزم کیا۔ Economic collapse will yield instability, conflict and a refugee influx into neighboring countries and onward to other regions. We must support an Afghanistan that contributes positively to regional stability and promotes connectivity. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میزبان ملک ایران کے نائب صدر نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی دراصل امریکی پالیسیوں کی شکست ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان ہمسایہ ممالک کی سلامتی اور استحکام افغانستان کے امن کے ساتھ وابستہ ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک غیر ملکی افواج کی عدم موجودگی کو یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران کے خاتمے کے لیے عالمی امداد ضروری ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین مختلف ممالک کے ساتھ افغان مسئلے پر بات کرتا رہے گا۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزارتی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوف سے ملاقات ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات سمیت افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی کی ترکمانستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ رشید میردوف اور تاجکستان کے وزیر خارجہ سراج الدین مہر الدین سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر علاقائی استحکام اور اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے باہمی روابط کے فروغ پر زور دیا گیا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، T20 ورلڈ کپ اسپیشل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر گروپ 1 میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ انگلش ٹیم نے 125 رنز کا ہدف 14.1 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا ہے۔
ابو ظبی میں ہونے والے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو درست ثابت نہ ہو سکا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 124 رنز بنا سکی۔ انگلش اسپنر معین علی نے تیسرے اوور میں لٹن داس اور محمد نعیم کو آؤٹ کر کے بنگلہ دیشی ٹیم کو دباؤ میں ڈال دیا۔ Top edge and in the air and should be taken and is taken. And he's going to hole out to mid-on. That is a tame dismissal. شکیب الحسن بھی 4 رنز بنا سکے۔ Splice should be gone. Is it Rashid? Oh, it is. What a catch, Adil Rashid. مشفق الرحیم 29 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ Big shout. محمود اللہ 19 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ انگلینڈ کی جانب سے ٹیبل ملز نے 3، لیونگ سٹون اور معین علی نے 2 وکٹیں اپنے نام کی۔ He's looking for that short side and he gets it over again. Bowled him, brilliant from Tamal Mill. انگلینڈ نے 125 رنز کا ہدف 14.1 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ جوز بٹلر 1 چھکا اور 1 چوکا لگانے کے بعد 18 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ Shot. Wonderful use of the feet. Out. Well taken. جیسن رائے نے نصف سینچری سکور کی۔ انہوں نے 38 گیندوں پر 61 رنز بنائے، جس میں 3 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ Lovely. There's a bit of pace on the ball. Beautiful shot. What a shot to bring up 50. ڈیوڈ ملان 28 اور جونی بیسٹو 8 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ بنگلہ دیش کے شریف السلام اور ناصم احمد کے حصے میں 1 وکٹ آئے۔ جیسن رائے میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ 4 for Bairstow, 4 for England, a win from England. They are 2 from 2. T20 ورلڈ کپ کے تمام مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ مدیحہ نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے 21ویں میچ میں اسکاٹ لینڈ نے نمیبیا کو جیت کے لیے 110 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں نمیبیا کی بیٹنگ جاری ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ابو ظبی میں کھیلے جا رہے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز بنائے۔ مائیکل لیسک 44، کرس کیوز 25 اور میتھیو کراس 19 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نمیبیا کی طرف سے روبن نے 3 اور جان فائلنک نے 2 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی انتظامیہ نے پی ٹی وی سپورٹس پر سابق ٹیسٹ کرکٹر شعیب اختر کے ساتھ پروگرام میں پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ پی ٹی وی انتظامیہ نے شعیب اختر اور ڈاکٹر نعمان نیاز کے معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو دونوں کے درمیان ہونے والی صورتحال کی تحقیقات کرے گی۔ سپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ ناظرین، پاک شائنا فرینڈشپ سینٹر میں یوم سیاہ کے حوالے سے تقریب جاری ہے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مرشد میرا جگدا لاڑائے بے آسریاں دا سہارائے، جا پوچھ لے بے شک رب کولوں، جا پوچھ لے بے شک رب کولوں، او عاشق آپ کلندر دا دھر رگڑا رگڑا دھر رگڑا دھر رگڑا رگڑا دھر رگڑا دھر رگڑا، مست کلندر دا سب جھگڑا مک جائے اندر دا، اے گل ہے عشق طریقت دی، اتھے فرق نہیں مسجد مندر دا، دھر رگڑا رگڑا دھر رگڑا 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 دھر رگڑا رگڑا دھر رگڑا۔ بہت بہت شکریہ اکمل قادری، کاشف علی دانی، ذیشان منصور اور میں ہوں عریب اظہر۔ آپ سب کو سلام اور تمام اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو دل سے سلام۔ پرفارمنس اینڈ ڈیفینیٹلی سب نے اس کو پسند کیا۔ شکریہ ادا کروں گی میں جناب صدر اور مسز پریزیڈنٹ کا کہ آپ آج کی شام میں
आपने शिरकत इख्तियार की। बहुत शुक्रिया आपका वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी साहब आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। और आखिरी अल्फाज यही कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाजरीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि यौम सियाह के मौके पर भारतीय जबर के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली का इनेकाद किया गया। तफसील से आगाह करेंगे अमजद अली। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह के हवाले से वजारत खारजा से रैली का इनेकाद किया गया। रैली के आगाज पर सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने चिनार के 3 पौधे लगाए जो कश्मीरियों की 3 नस्लों की अलामत हैं जो भारतीय कब्जे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद रैली अपनी मंजिल डी चौक की जानिब रवाना हुई। रैली के शुरका ने मैं कश्मीर हूँ और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली शहर दस्तूर पर रवाना हुई। रास्ते में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, सेनेट में कायद ऐवान, वफाकी वुज़रा अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती समेत मुख्तलिफ वुज़रा ने शिरकत की। कश्मीर की 3 नस्लों ने इंतहा कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी और अपने हक़ खुदरातियत के हसूल की खातिर। उसको हम ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं और उन तमाम शुहदा को आज अपनी दुआओं में रखते हैं। भारत ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को यकतरफा इक़दाम उठाया, जिसके बाद से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में नया जोश देखने में आ रहा है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर यौम सियाह के मौके पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इयादा किया है। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अब भी आपको बताएं कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है उनका मुल्क अफगान अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने को तैयार है, लेकिन तालिबान हुकूमत को ब्लैंक चेक नहीं दे सकते। दारुल अवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इमदादी इदारों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के इक़दाम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये मुल्क दोबारा दहशतगर्दी का मरकज़ न बन पाए। नाज़रीन, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी और उनके वफ़द ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जर्मनी, जापान, हॉलैंड और नॉर्वे के नुमाइंदों और सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकात की। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सियासी और इक़्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अफगान नुमाइंदों का कहना था कि उनका मुल्क आलमी बरादरी के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाह है। उन्होंने अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा किया। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद पहली बार मंजर आम पर आ गए हैं। उन्होंने काबुल के सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल में ताजरों से खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कहा कि हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हैं। इस सिलसिले में ताजरों को अहम किरदार अदा करना होगा। उन्होंने ताजरों से अपील की कि वो सेहत के शोबे में सरमायाकारी करें। उन्होंने डॉक्टर से भी कहा कि वो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दें। हुकूमत उनका हर मुमकिन ख्याल रखेगी। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद तालिबान तहरीक के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं और इससे कबल कभी मंजर आम पर नहीं आए। अभी खबर यह है कि पाक फौज ने जिला कुरम के नजदीक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की सरहद पार करने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर फौरी कार्रवाई की।
फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 24 साला लांस नाइक असद और 21 साला सिपाही आसिफ शामिल हैं। लांस नाइक असद का ताल्लुक जिला कुरम और सिपाही आसिफ शहीद का ताल्लुक लकी मरवत से है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से ये उम्मीद करता है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के इस तरह के वाकयात में हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी के लिए कोशां है। इस्लामाबाद में एहसास टारगेटेड सब्सिडी से मुतालिक जायज़ा इजलास करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम के रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी से मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतें बढ़ने के असर को मकामी सतह पर मुंतकिल होने से रोकने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। इजलास में टारगेटेड सब्सिडी के निज़ाम पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने निज़ाम को जल्द मुकम्मल करने और आगाही बढ़ाने के लिए हिदायत जारी की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तिफादा हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर ओन अब्बास बिबी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में जनूबी पंजाब में तरक्याती पैकेज के मुस्बत असरात और अवामी रिलीफ के लिए किसान कार्ड और सेहत कार्ड के इजरा पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों की जदोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म और बर्बरियत की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में यौम सियाह कश्मीर के मौके पर मुनक्कदा तस्वीरी नुमाइश से खिताब कर रहे थे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने तस्वीरी नुमाइश से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्राइज्ड इलाका है, जहां हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 7 दहाइयों पर मुश्तमिल कश्मीरी अवाम के आज़ादी की सफ़र में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। हमारी सियासत, हमारी मईशत कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है। ये वो पाकिस्तान का जज्बा है, ये वो पाकिस्तानियों का कश्मीर के लोगों के लिए मोहब्बत है, जिसका इजहार बारहा हमने अपने खून से, अपने मईशत के ऊपर और दामे सुखने वर्मे हमने किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये जज्बे सलामत रहेंगे। कश्मीर की जो जदोजहद है वो अपनी कामयाबी तक जारी रहेगी। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि भारत सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद में रुकावट है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों के सच्चे वकील और दिलेर सफ़ीर होने का सबूत दिया है। जितने वहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। ये जो 5 अगस्त का मामला है, जहाँ कश्मीर की जो मतनाज़ हैसियत को ख़त्म किया गया, उसमें जो मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना RSS की जो उनकी आइडियोलॉजी है वो गालिब आई है। यौम सियाह कश्मीर के मौके पर मुनक्कदा तस्वीरी नुमाइश में रखी गई तस्वीर में उस जबर, इस्तबदाद और तशद्दुद की एक झलक देखी जा सकती है जो मजलूम कश्मीरी अवाम पर भारतीय फौज ने रवा रखे हुए हैं। यौम सियाह पर आज़ाद कश्मीर में जलसे, जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया गया। तफसील अदील अहमद खान से। यौम सियाह के सिलसिले में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर क़यादत रावलाकोट में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके अब्बासपुर में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फिजा भारत मुखालफ नारों से गूंजती रही। इज्तिमा से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 के दिन भारत ने छाता बरदार फौजें कश्मीर में उतार कर आलमी कवानीन की धज्जियां बखेर दी। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं जो भारत के मजालिम का सामना कर रहे हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्कदा तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर बल्दियात आज़ाद कश्मीर ख्वाजा फारूक अहमद, वज़ीर इत्तलात सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी और दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि भारत
ताकत और जबर के जोर पर कश्मीरियों को ज्यादा देर तक महकूम नहीं रख सकता। यौम स्याह के सिलसिले में बुरहान वानी चौक मुजफ्फराबाद से पासबान हुर्रियत के जेर एहतमाम बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बुरहान वानी चौक से जिले हेडक्वार्टर्स तक मार्च किया। रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि भारत जमहूरी मुल्क होने का दावेदार है तो रियासत जम्मू कश्मीर पर फौजी कब्जा क्यों कर रखा है। मुकर्रीन ने कहा कि भारतीय फौज के इनखला तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। रियासत के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम स्याह भरपूर अंदाज में मनाकर एक मरतबा फिर अक़वाम आलम बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर यह वाज़ेह किया है कि उनके लिए हक़ खुद इरादियत के बगैर मसला कश्मीर का कोई हल काबिल कबूल नहीं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब के तमाम शहरों में कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। तफसील जानते हैं मोहम्मद सुफियान से। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी नाजायज कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाते हुए पूरी कौम सरापा एहतजाज है। इस हवाले से गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में सूबाई वज़रा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और हुकूमती आला शख्सियात ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि आज भारत और दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। 72 साल गुजरने के बावजूद आज तक वो कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनके साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिटमेंट की थी, जो करारदादें पास की थी, उन पर अमल दरामद किया जाए। रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक मिलना चाहिए। जिस तरह कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है और जिस तरह से कश्मीर के सफ़ीर बने हैं, शायद तारीख़ में कभी कोई हुआ हो। हम इंशाअल्लाह कश्मीर के साथ थे, कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर के साथ रहेंगे। लाहौर समेत गुजरात, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, ओकाड़ा और दीगर शहरों में भी इजहार यकजहती कश्मीर के लिए रैलियां निकाली गईं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए आवाम सड़कों पर निकल आए और भरपूर अंदाज में यौम स्याह मनाया। मोहम्मद जुबैरुद्दीन से तफसील जानते हैं। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती और भारतीय गाज़बाना तसल्लुत के खिलाफ यौम स्याह के मौके पर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि 70 से ज़ायद सालों से भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी रखा हुआ है, ताहम वो न कश्मीरियों की आवाज़ को खामोश करा सका है और न ही वो उनका मजीद इस्तेहसाल कर सकेगा, जबकि अक़वाम आलम को भी कश्मीरी अवाम के हुकूक का पास रखना होगा। कराची प्रेस क्लब में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से भी मुजाहिरे का एहतमाम किया गया। यौम स्याह के मौके पर कमिश्नर कराची की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चे, बड़े समेत सभी ने शिरकत की और भारतीय गाज़बाना तसल्लुत के खिलाफ आवाज बुलंद की। सूबे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी वॉक का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि जुल्म और जबर की रात जल्द खत्म होगी और कश्मीर में आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। सूबे सिंध के दूसरे शहरों जामशोरो, सखर, सांगड़, बदीन, ठट्टा, नौशेरो समेत दीगर अजला में भी यौम स्याह भरपूर तरीके से मनाया गया और भारतीय अज़ाइम की मजम्मत की गई। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, यौम स्याह पर इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा किया गया। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे राहील अंसार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में नारे लगाए। हुर्रियत रहनुमा इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन दफ्तर भी गए और मसला कश्मीर के हल के लिए याददाश्त पेश की। यूथ फोरम फॉर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का नहीं, हम सब का मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का फौरी हल निकालना होगा। तकरीब से हुर्रियत रहनुमा यासिन मलक की अहलिया मशाल मलक
और दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं ने भी खिताब किया। यौम सियाह के मौके पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुकर्रिर ने कहा कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलने तक उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह के मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल रिटायर्ड एहसानुल हक और दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि नहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम की इंतहा हो गई है। आलमी बरादरी को मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। यौम सियाह कश्मीर के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा में रैलियां निकाली गई। पेशावर से निकलने वाली रैली की क़ियादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने की। सूबाई असम्बली के अराकीन के अलावा सरकारी हुकाम और समाजी शख्सियात ने भी रैली में शिरकत की। रैली के शुरका की जानिब से नहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। बालाकोट में आबी ज़खायर के वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साले मोहम्मद खान की क़यादत में निकलने वाली रैली में बड़ी तादाद में शहरियों और स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा, बूज़ावादी की आज़ादी तक हर पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद में शामिल है। बलूचिस्तान के तमाम 34 अजला में भी यौम सियाह कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। सूबे भर में रैलियां निकाली गईं और तकारीब का इनेकाद किया गया। मुल्तान में भी यौम सियाह के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया और रैलियां निकाली गईं। मुल्तान में होने वाली मरकजी तकरीब में मुकर्रिरीन ने कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम की शदीद मजम्मत की और मकबूजा कश्मीर के शोहदा के लिए दुआ की। यौम सियाह के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान में भी रैलियां निकाली गईं। गिजर, चिल्लास, अस्तोर, हुंजा, नगर, स्कर्दू, शिगर, गांजे और खपलू में निकाली जाने वाली रैलियों में शरीक लोगों ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों की हिमायत में और भारत के गैर कानूनी तौर पर जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वर्ल्ड कप T20 मैच में भारत के खिलाफ कामयाबी के बाद भारत ने कश्मीरी तलबा के खिलाफ हमलों की दफ्तर खारजा ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि नफरत आमेज रवैया बीजेपी RSS के हिंदुत्व सोच का अक्कास है। बयान में कहा गया है कि कश्मीरी तलबा और नौजवानों के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमात का इंदराज भी काबिल मजम्मत और तशवीशनाक है। नफरत को बढ़ावा देने और इस्लामोफोबिया के ऐसे वाक़यात भारत में अदम बर्दाश्त को जाहिर करते हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब जुमे को होगा। इस मकसद के लिए सूबाई असम्बली का इजलास 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी कल शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा होंगे। सूबे की सियासत में राब्ते जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने वज़ारत आला के ओहदे के लिए मीर अब्दुल कदूस बजिंजो की हिमायत का ऐलान किया है। PTI के सूबाई पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रेन ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजानी, वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक और मीर अब्दुल कदूस बजिंजो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल को बाहमी ताउन से हल किया जा सकता है। वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने कहा कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है। नामजद वज़ीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो ने कहा कि हम सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। गवर्नर सैयद ज़हूर अहमद आगा से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी और मीर अब्दुल कदूस बजिंजो ने मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुशीर खजाना शौकत तरीन की सदारत में हुआ। सेक्रेटरी खजाना ने कमेटी को बताया कि एक हफ्ते में कीमतों के हसास अशारिये में 1.38% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे के असरात दुनिया भर में देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के दौरान 7 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 15 की कीमतें मुस्तहकम रही। चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनिस इलाही से मुलाकात की और इदारे के तरक्याती प्रोग्राम और पन बिजली मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कौमी तरक्की और मौशी इस्तेहकाम के लिए आबी वसाइल का फ़रोग़ नागुज़ीर है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेरे एहतमाम वेबिनार से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़रूख हमीद ने कहा कि पाकिस्तान और चीन अमन व तरक्की में शराकतदार हैं और दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि मेरिट की बुनियाद पर सियासी निज़ाम की तश्कील वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए कोशां है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई है। ट्विटर पर अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में कोरोना मरीजों की तादाद भी इंतहाई कम है और अमवात में भी नुमाया कमी आ रही है।
एनसीओसी टीम ने सेक्रेटरी आरटीए रावलपिंडी के साथ मरी एक्सप्रेसवे पर 17 मील टोल प्लाजा के मकाम पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सैकड़ों मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीन लगाई। टीमों ने होटल्स के सार्फिन अमले के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी चेक किए और एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को सील करने के अलावा भारी जुर्माने भी आयद किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 516 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 28,405 हो गई है। इस दौरान 38,430 अफराद के टेस्ट किए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची मेगा प्रोजेक्ट पर काम की पेशरफ का जायजा इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि नाथा खान पुल पर यू टर्न की तामीर का काम 70%, स्टार गेट से चाकरो नाला तक, स्टारम वाटर ड्रेन पर 85%, जबकि गुलबाई से वाई जंक्शन रोड स्कीम 88% मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर को गुलबाई ता वाई जंक्शन सड़क की सर्विस लेन पर गाड़ियों की पार्किंग बंद करने की हिदायत की। सैयद मुराद अली शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर को रोड स्कीम की तामीर का काम नवंबर तक मुकम्मल करने और सब मेरीन चौरंगी को खूबसूरत बनाने की हिदायत की है। नाज़रीन, गिलगित में चाइल्ड लेबर सर्वे के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बैरिस्टर खालिद खुर्शीद ने कहा कि हुकूमत बच्चों से मुशक्क़त के खात्मे के हवाले से कानून साजी कर रही है और इलाके में चाइल्ड लेबर सर्वे अहम कामयाबी है। उन्होंने बताया है कि गिलगित बल्तिस्तान में 13% से ज्यादा बच्चे मजदूरी करते हैं, जिनमें 12.6% लड़कियां और 13.6% लड़के हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरी करने वाले बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मुस्तकबिल में अहम इक़दाम किए जाएंगे। सदर ममलिकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना कर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जाती है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और RIUJ के ताउन से मुनक्किदा कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईमान की तकमील मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरूत है। बेगम समीना अलवी ने कहा कि बहैसियत मुसलमान हम सब का फ़र्ज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करते हुए भलाई और खिदमत खल्क के रास्ते पर चलें और बुराइयों से बचने की कोशिश करें। इस मौके पर उनका कहना था कि भलाई और खिदमत के खल्क के रास्ते पर चलें, बुराइयों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के शुरका में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। नाज़रीन, 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी पर कल फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई रोक दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एचनाइक अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कल चार्ज फ्रेम हो गया तो हमारी दरख्वास्त ही गैर मौसर हो जाएगी। एहतसाब अदालत के 14 अक्टूबर के ऑर्डर पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएं कि पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की सदारत में हुई। कॉन्फ्रेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों की तरबियती और फलाही उमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया की जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। मौसम का हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। सलमा कौसर और नाज़े खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।